With India's Gaganyaan crew returned to Earth, ISRO show key parachute test. See the important report. ISRO Vikram Sarabhai Space Center (VSSC) has successfully conducted Doggy parachute deployment test, an essential part of the India's Gaganyaan project at rail track rocket uh, sled RTRS facility in Chandigarh from August 8 to 10. You know that the Gaganyaan project by the Indian Space Research Organization ISRO aimed to demonstrate the country's capability for human space flight by sending a crew of 3 members into a 400-kilometer orbit for 3 day mission and bringing them back safely to Earth by landing in the Indian sea waters. The mission is expected to take place by end of 2023 or in beginning of 2024. Drogue parasites are a crucial element, or we can say that drogue parachute is very important for this kind of mission for the safe transportation of astronauts from space. The parachute are packed within pyro-based devices known as mortars and are indigenously designed to eject the parachutes into the air upon command. These conical ribbon type parachute boasting a diameter of 5.8 meter around 18 feet employed a single stage reefing mechanism ingeniously minimizing canopy area and mitigating opening shock, ensuring a smooth and controlled descent. ISRO informed. What ISRO tested in this simulation? Do you know? During the 3 comprehensive tests conducted at a RTRS facility, a range of real world scenarios were simulated to rigorously evaluate the performance and reliability of the Drogue parachute. ISRO said, according to the Indian Space Agency, the first test simulated maximum reefed load marked a groundbreaking introduction of reefing in a mortar deployed parachute within India. The second test emulated the maximum disreefed load, while the third test showcased the deployment of the Drogue parachute under conditions morning or the maximum angle of attack experienced by the crew module during its mission. This successful round test signifies ना को तो आप जानते ही होंगे, उसने भारत का नमक खाया और भारत के ही पेट में खंजर भोंक दिया और धोखा दे दिया। और इस धोखे के सबसे बड़े है ना जो आपके भुक्तभोगी रहे वो रहे कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता, और उनका ये मानना है कि देश को बांटने में जिन्ना से बड़ा कोई बड़ा धोखेदार नहीं, एहसान फरामोश था वो, और उसकी मृत्यु भी आपने सुना होगा, देखा होगा इतिहास के झरोखे से। तो देखते हैं, ठीक है। हालांकि गांधी जी को भी इसी तरीके से मारा गया, लेकिन वो एक गलत था, ठीक है। तो दोनों लोगों के साथ जो राष्ट्रपिता रहे उनके साथ तो बहुत सही नहीं हुआ, जैसा रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी नेता के साथ। जिन्ना के धोखे में आ गए कम्युनिस्ट और बट गया देश। कौन सा देश? भारत। कम्युनिस्टों ने मोहम्मद अली जिन्ना की मदद क्यों की थी? क्या आप जानते हैं किस तरह से पंजाब में मजबूत हुई मुस्लिम लीग? क्या है गंगाधर अधिकारी थीसिस और बंटवारे में क्या रोल है? विभाजन के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं जगह मिली कम्युनिस्टों को, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में मदद करी, और वही कम्युनिस्ट पाकिस्तान से भगा दिए गए। और ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की मैगजीन से अभी पता लगा है कि आपको बता दें कि लेबर मंथली के नाम से फेमस है। इसमें ये बताया गया है कि 1943 में पाकिस्तान एंड इंडियन नेशनल यूनिटी नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो
वरिष्ठ सदस्य गंगाधर अधिकारी, इसे गंगाधर अधिकारी थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि देश के बंटवारे में कम्युनिस्ट नेता गंगाधर के उस प्रस्ताव की बड़ी भूमिका रही जिसे उन्होंने इस लेख में विस्तार से समझाया था। असल में सितंबर 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी का एक विशेष महा अधिवेशन हुआ था। इसमें गंगाधर अधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि कम्युनिस्ट पार्टी को मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना चाहिए और समर्थन भी किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम में लीग की मदद भी की। अब इस मदद से हुआ क्या? इसलिए जब जिन्ना दानियाल लतीफ़ी से मिले तो लतीफ़ी ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग को आम लोगों के बीच पैठ बनानी है तो पाकिस्तान की मांग से आगे बढ़कर तरक्की और खुशहाली को अपना ठोस एजेंडा बताना होगा। तब जिन्ना ने दानियाल लतीफ़ी को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तैयार करने को कहा। कानून के जानकार और सोशलिज्म के समर्थक दानियाल लतीफ़ी तन मन से मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र तैयार करने में जुट गए। उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया वो तो बहुत ही कमाल का था और वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में स्थापना हुई और कांग्रेस के साथ रिलेशन भी अच्छे रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद, तब सोवियत संघ का हिस्सा था और अब उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, में हुई थी। पार्टी की स्थापना सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति की सफलता और दुनिया भर के लोगों के बीच आपसी राजनीति और आर्थिक संबंध बनाने के जोर वाले दौर में हुई थी। पार्टी स्थापना में मानवेंद्र नाथ रॉय ने अहम भूमिका भी निभाई थी। मानवेंद्र रॉय, उनकी पार्टनर एवलियन ट्रेंट रॉय, अंबानी मुखर्जी, रोजा फिटिंगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, MPVT आचार्य ने सोवियत संघ के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की घोषणा की थी। इनमें MN रॉय अमेरिकी कम्युनिस्ट थे, जबकि अंबानी मुखर्जी के पार्टनर रोजा फिटिंगॉफ रूसी कम्युनिस्ट थीं। मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक तुर्की में खिलाफत शासन को लागू करने के लिए भारत में चल रहे खिलाफत आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रूस में थे। ये वो समय था जब गांधी भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उस वक्त में खिलाफत आंदोलन के कई कार्यकर्ता भारत की यात्रा भी कर रहे थे। कुछ तो पैदल ही यात्रा कर रहे थे और सिल्क रूट के रास्ते भारत आ रहे थे। ये लोग तुर्की में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध भी कर रहे थे। यह दौर एक तरह से भूमंडलीय दौर था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुहिम छेड़ रखी थी, क्योंकि ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार का विरोध करते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने का फैसला कर लिया था। फर्जी एनकाउंटर में मारे गए थे उस टाइम पर आदिवासी। उस भूमंडलीय दौर का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि MN रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने से पहले मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट वर्कर पार्टी की स्थापना कर चुके थे। देश भर में ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष कर रहे विभिन्न समूह इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। महत्वपूर्ण बात ये रही कि अमेरिका से चल रही गदर पार्टी के सदस्यों पर इसका काफ़ी असर देखने को मिला। इसी वक्त में खिलाफत आंदोलन में हिस्सा ले रहे युवा बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इन सब के अलावा MN रॉय देश भर में विभिन्न समूहों को पार्टी से जोड़ने के काम में लग गए। हालांकि पार्टी के कोई ठोस कार्यकारी योजना नहीं थी। कम्युनिस्टों ने उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के साथ काम करने, उनका आंतरिक हिस्सा होने और दिलचस्पी लेने वाले लोगों को साथ लेने का काम किया था। उन्होंने मुख्य तौर पर शहरी इलाके के औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया। मद्रास के कम्युनिस्ट नेता सिंगारावेल चौटियार और उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में हुआ करते थे। जब उन्होंने 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के दौरान संपूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तो वो सुर्खियाँ बटोरने में कम नहीं आई थी, मतलब सुर्खियाँ काफ़ी मिली थी उन्हें। पाबंदियाँ और षड्यंत्र के मामले क्या रहे? आज जब हम पाबंदियों और षड्यंत्रों की बात करते हैं तो हमें इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद आती है, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान कम्युनिस्टों पर लगा प्रतिबंध जो होता है, जैसे किसी को बैन कर दिया, इसकी तुलना में बेहद भयावह था। कम्युनिस्टों पर
षड्यंत्र करने के मामलों में अंग्रेज़ों के ज़माने में लगे थे इस टाइप के में T-72 टैंकों की जगह लेंगे अति आधुनिक फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स। 4 ईयर में ये सारे के सारे फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल तैयार हो जाएंगे। इसके तैयार करने के लिए निजी कंपनियों को न्योता दिया गया है। इंडियन आर्मी के T-72 टैंकों की जगह पर अति आधुनिक देसी टैंकों के बनाने पर काम हो रहा है। सरकार के सहयोग से देसी कंपनियां इन पर काम कर रही हैं और ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल करीब 4 साल में डेवलप होकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और जब शामिल होंगे तो भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय सेना के T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल FRCV पर काम हो रहा है। स्वदेशी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर काम करने की चर्चा हो रही है। करीब 4 साल में स्वदेशी फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल डेवलप हो जाएंगे। तब तक T-72 टैंकों को रिटायर करने का टाइम भी आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सेना को 1770 से ज़्यादा फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स मिलेंगे। लेकिन इस फेज़ जो आपका पहला वाला फेज़ होगा वो अलग होगा, मतलब यह फेज़ वाइज मिलेंगे ताकि बदलते वक्त के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी इसमें समाहित की जाए, यूज की जाए। पहले फेज़ में करीब 600 टैंक तैयार किए जाएंगे पिछले आगे आने वाले 4 साल में। यह मौजूदा तकनीक के हिसाब से होंगे। इसके लिए भारतीय सेना ने एक्सपर्टेंस इन प्रिंसिपल AIP स्वदेशी कंपनियों के लिए जारी किया था और बताया था कि सेना को अपने मेन वेटल टैंक में क्या खूबी चाहिए। स्वदेशी इंडस्ट्री का इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। सूत्रों के मुताबिक अब फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। इसके फिजिबिलिटी टेस्ट के बाद अगले कुछ महीनों में फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो जाएगी, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। करीब 4 साल में इन टैंक का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और फिर उसका निर्माण शुरू होगा। दूसरे फेज़ में करीब 600 टैंक चाहिए होंगे। ये उस वक्त की तकनीक के हिसाब से होंगे। तीसरे चरण तक तकनीक और ज़्यादा बदल दी जाएगी, एडवांस्ड हो जाएगी, तो बाकी टैंक नई टेक्निक को शामिल करते हुए बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होंगे। यह मेक वन प्रोजेक्ट है, यानी इसके लिए सरकार फंड कर रही है। मेक वन का मतलब सरकार पूरा का पूरा पैसा दे रही है। 70 के दशक में भारतीय सेना ने सोवियत संघ से T-72 टैंक लेने का फैसला किया था और 1978 में T-72 के 3 वेरिएंट T-72, T-72M, T-72M1 की खरीद फरोख्त सोवियत संघ से की गई थी, जो आज रसिया में और भिन्न देशों में टूट गया है। 1980 में इसका निर्माण चेन्नई में शुरू किया गया था। यह टैंक अब पुराने हो गए हैं, हालांकि इन्हें अपग्रेड किया गया है। कुछ साल पहले ही इन्हें स्वदेशी इंजन से अपग्रेड किया गया और इनकी ताकत 786 हॉर्स पावर से बढ़ाकर 1000 हॉर्स पावर कर दी गई। ये रहा आपका जानकारी। चौधराहट का सपना देख रहे चीन की हालत पाकिस्तान की तरह पतली क्यों होती जा रही है। चीन अपने सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांड के पतन के बाद चल रहे संपत्ति बाजार संकट से भी निपट रहा है। चीन की सरकार यह संदेश देती रहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत रियल कुछ और ही है। रियल इससे अलग है, डिफरेंट है। लगभग 3 हफ्ते पहले चीन के नेता शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में अधिकारियों ने स्वीकार किया कि चीन की अर्थव्यवस्था नई कठिनाइयों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और सिन्हुआ एक समाचार एजेंसी है, शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर हम देखें तो उनके अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वायदा तो किया था, लेकिन वो फेल हो रहे हैं। फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोविड प्रतिबंधों के हटने के बाद साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में तेज़ी भी आई थी, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। आर्थिक दिक्कतें, घरेलू मांग में कमी और कई वजह चीन को गंभीर वैश्विक अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहे हैं। चीन ने आर्थिक आंकड़ों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है जो देश के अधिकारियों को परेशान करने लगा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स और व्यापार भुगतान की कीमतें लगातार क्या हो रहा है, गिर रही हैं। गिरने का मतलब ये हुआ जैसे किसी का 1 करोड़ रुपये का भुगतान होना है
तो उसे 80 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 20 लाख का घाटा हो रहा है। जुलाई में खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई। रियल एस्टेट में निवेश लगातार गिर रहा है। नतीजन शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई है। हांगकांग के कारोबार को करने वाले चीनी शेयरों का एक सूचकांक इस महीने 9% से ज़्यादा गिर चुका है। बड़ी शेयर मार्केट कंपनियां जैसे बेंचमार्क, हैग, सैग इंडेक्स निचले पायदान पर हैं। इसके सदस्यों में चीन की रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन भी शामिल है, जिसने इस महीने अपनी आधी वैल्यू गंवा दी है। निवेश बैठक बैंक नोमुरा के विश्लेषक ने एक रिपोर्ट में लिखा, चीनी अर्थव्यवस्था अभी तक आने वाले सबसे खराब दौर का सामना कर सकती है। चीन की रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। कंपनी पर 200 अरब डॉलर का बिल बकाया हो गया है। ये कंट्री गार्डन का संभावित पतन माना जा रहा है, मतलब अब तो गई काम से। कंट्री गार्डन पर कैसे आई मुसीबत, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक साल पहले कंट्री गार्डन रियल एस्टेट कंपनी की एक मॉडल कंपनी मानी जाती थी। कंपनी ने लापरवाही करना शुरू किया और बिलों का भुगतान बंद कर दिया। मतलब अगर कोई किस्त 5-5 हज़ार रुपये की तो वो देता रहे तो समस्या नहीं है, और उसने किस्त रोक दी 1 साल तक, तो फिर वो इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा। 1992 में यांग गुओ कियांग ने कंट्री गार्डन की स्थापना की थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बूम माना जाता था। इसकी सफलता ने यांग को अरबपतियों में लाकर खड़ा कर दिया। कंपनी देश की तरक्की के लिए नज़ीर बन गई, मतलब एक प्रकार का क्या, एक सेट बन गया कि हाँ एक गोल बन गया, एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट कर दिया। चीनी लोगों के पास पैसा बनाने के लिए विश्वसनीय विकल्प बने। उन्होंने अचल संपत्ति में अपनी आय और बचत का निवेश किया, मतलब प्लॉट में, फ्लैट में, घर मकान में, दुकान में, अचल संपत्ति। कई बड़े निजी डेवलपर्स की तरह कंट्री गार्डन ने उधार लेना जारी रखा और अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए खूब उधार लिया। बिल बहुत बड़े होने लगे। अधिकारियों को डर लगने लगा कि कंपनी का कर्ज देश के पूरे वित्तीय प्रणाली को खतरे में डाल सकता है। चीन की शीर्ष नेता भी शी जिनपिंग ने आदेश दिया कि कंपनी पर अटकलें लग रही हैं कि ये मुसीबत ला सकती है, और 2020 में सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों की धन जुटाने की क्षमता को सीमित कर दिया था, और यहीं से शुरू हो गई बर्बादी इस कंपनी की। कई अन्य डेवलपर्स ने भी कंट्री गार्डन को अपने बिलों का भुगतान करना बंद कर दिया। खरीद में भी काफ़ी गिरावट आई और भुगतान में भी काफ़ी गिरावट आई। कितनी बड़ी है ये परेशानी, समझने की कोशिश करते हैं। बाजार, निवेशक और घर खरीदारों को सबसे खराब स्थिति का डर सता रहा है। अगस्त की शुरुआत में कंट्री गार्डन ने कर्ज पर 2 ब्याज भुगतानों को छोड़ दिया। अगर वह सितंबर की शुरुआत तक भुगतान नहीं करती है तो लेनदारों को 30 दिन की छूट अवधि के बाद और समय नहीं दे पाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट होगा। हांगकांग में कंपनी के शेयर की कीमत $1 से नीचे आ चुकी है। कंट्री गार्डन का घाटा बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने खुद कहा है कि यह साल के पहले 6 महीने में 7.6 बिलियन तक के नुकसान की रिपोर्ट करने की उम्मीद करता है। विशेषज्ञों ने कहा कि भले ही लोग अभी भी कंट्री गार्डन के अपार्टमेंट खरीद रहे हों, लेकिन वे वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। इसके अलावा कोई एक ऐसी कंपनी से एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता है जो खुद खतरे में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सब के बाद ये कहा जाने लगा है कि कंट्री गार्डन चाइना एवरग्रांडे की तरह समाप्त हो सकती है, जो एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी। जब यह कंपनी 2001 में ढह गई, समाप्त हो गई, कर्ज में डूब गई, दिवालिया हो गई, बर्बाद हो गई, तो वैश्विक बाज़ारों में दहशत फैल गई और पैदा हो गई दहशत। कंट्री गार्डन भी देश के रियल एस्टेट बाज़ार में दहशत पैदा कर रहा है। कई चीनी विश्लेषक ये लिख रहे हैं कि कंट्री गार्डन डिफ़ॉल्ट एवरग्रांडे जितना प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। यह
और भी बदतर हो सकता है। बड़े डेवलपर्स पहले ही निराश हो चुके हैं और 1995 में एक लकड़ी के बिजनेस के तौर पर जोंगजी एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते ये 1 ट्रिलियन युआन 138 बिलियन से ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई। लेकिन अब इस फर्म ने चीनी बाज़ारों में खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे सिर्फ कंपनी के निवेशक भयभीत नहीं हैं, चीनी अधिकारियों को भी डर लगने लगा है। इसलिए अधिकारियों ने किसी भी मुसीबत से बचने के लिए एक रिसर्च टीम बना डाली है, जो जोंगजी की बैंकिंग नियामक कंट्रोल करने वाली में पैदा हुए खतरे की जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। जोंगजी एंटरप्राइजेस ग्रुप ने बुधवार को निवेशकों से कहा कि वह नकदी संकट का सामना कर रहा है। इसकी वजह से चीनी संपत्ति प्रबंधक कहलाते संपत्ति बाजार में गिरावट से जूझ रहा है। बता दें कि जोंगजी के अलावा अनबांग इंश्योरेंस ग्रुप और HNA समूह सहित कई कंपनियां पतन का सामना कर रही हैं। जोंगजी का और रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनियों के फेल होने से चीन के सामने कई सारे संकट खड़े हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चीन की आर्थिक व्यवस्था सुस्त हो रही है। इस वजह से एशियाई शेयर गुरुवार को 9 महीने के निचले स्तर पर आ गया। चीन का ब्लू चिप CSI 300 इंडेक्स 0.45% नीचे आ गया। हांगकांग का सेग इंडेक्स 1.7% नीचे आ गया और लगभग 9 महीनों के निचले स्तर पर। चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की तुलना 3 दशक पहले की जापान से की जा रही है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने एक रिपोर्ट में बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में सालाना 0.3% गिर गया, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ चुकी है और 1990 के दशक की शुरुआत में जापान की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट की याद दिलाता है। 3 दशक पहले जापानी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर विकास, संपत्ति की कीमतों में गिरावट और रियल एस्टेट की परेशानी का सामना करना पड़ा था, जो चीन की मौजूदा हालत जैसा था। और आपको बताएं कि चीन दुनिया भर में बेचे जाने वाले सामानों का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। अगर हम चीन देश की बात करें, अर्थव्यवस्था में आई गिरावट का एक असर यह भी हो सकता है कि वह ब्रिटेन सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में बढ़ती कीमतों पर असर डालेगा। अगर चीनी सामानों में कटौती होने से वैश्विक बाजारों के निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह व्यवसायों में होने वाले निवेश पर भी असर डालेगा और रोजगार को कम कर सकता है। इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही दूसरी मुश्किलों का सामना कर रही है और आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि चीन की निर्यात एक्सपोर्ट में 1 साल पहले की तुलना में जुलाई में 14.5 की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आयात में इंपोर्ट में 12.4% की गिरावट आई है। गंभीर व्यापार आंकड़े उन चिंताओं को उजागर करते हैं कि देश की आर्थिक वृद्धि इस साल और धीमी हो सकती है। चीन अपने सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांडे के पतन के बाद चल रहे संपत्ति बाजार संकट से भी निपट रहा है। चीन की सरकार यह संदेश देती है कि ये सब ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और ये 3:30 बजे कार्तिक पानी क्यों फालतू चला रहे? हाँ, gas station से। अंबर बोतल ठंडे पानी से पूरी तरह भरी है, क्योंकि बच्चे पानी वानी मांगते हैं। इतनी खाली थी, भरी थी। अब इनसे पूछो, इन्हें अभी पानी पिया, फिर कहेंगे हमें नहीं पता। बोतल को पौंडा भर दो और 1 गिलास पानी की। हाँ, Russia's Luna 25 moon lander sends first picture from space। आपको बताएं कि द स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रसिया अकेडमी ऑफ साइंसेस IKIRAS released the first image clicked
and sent by its lunar mission Luna 25. The collection of black and white pictures shows the mission patch on the spacecraft's structure and the Russian flag alongside Earth and the Moon shining bright. According to IKIRAS, the images were taken at a distance of about 1,92,625 miles, or we can say that 3,10,000 kilometers from the Earth. IKIRAS stated all the statement of the spacecraft are operating normally, communication with the station is stable and the energy balance is also positive. Luna 25, which took off on August 10, 2023, aims to study the composition of the polar regolith and the plasma and dust components of lunar polar exosphere or exosphere. Luna 25 is expected to land on the moon's south pole on 23 August. The date may be changed. Next story you will wait for. Chandrayaan 3 vs Luna 25, what all you need to know. In this video I would like to tell what the major challenges faced by ISRO in Chandrayaan 3 mission. The major challenges for ISRO is to navigate the long journey while Chandrayaan 3 enters in the moon orbit and to make a successful landing on the lunar surface. So, how is ISRO planning to ensure a safe landing for the Chandrayaan 3 on lunar surface? Can you tell? I would like to tell you. ISRO Chairman S. Soumnath said the agency has ensured a proper touchdown of Chandrayaan 3's Vikram lander this time. He explained that Vikram has been designed in such a way that it can make a soft landing even if all the sensors of engages or engine fail. What are the differences between Luna 25 and Chandrayaan 3? Luna 25 is Russia's first lunar landing mission, launched on 11 August 2023, while Chandrayaan 3 is India's third lunar mission, which was launched on 14 July 2023 and is on its journey to the moon. Luna 25 will aim to operate for 1 year from the moon's south pole. Chandrayaan 3 is expected to land on August 2023, 23 August, and will spend on one lunar day, which is equivalent to 14 Earth day. What is the expected landing site for Luna 25 and Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 and Luna 25 both missions aimed to soft landing on a lunar south pole. Thank you so much. Have a nice day. नए मुस्लिम देश को नाम दिया पाकिस्तान बना तो वह रहमत अली खान का क्या हुआ? क्या वो जीवित थे? क्या उन्हें खुशी थी या क्या हुआ? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। रहमत अली ने पाकिस्तान के जिस भूभाग की कल्पना की थी वो वास्तविक सीमा के अंदर नहीं है। फिर भी भारत की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन ये अलग लोगों की कहानियाँ हैं और ये बताती हैं, अलग लोग इस बात पर भी बातचीत करते हैं कि आज रहमत अली का कोई नाम लेने वाला नहीं है। और आज ही क्यों, पाकिस्तान बनने के वक्त भी किसी को रहमत अली याद नहीं आए थे। अब उसका क्या रीज़न रहा होगा वो तो आप जानते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो किसी भी चीज़ को अपने लिए उन मुद्दों को चोरी कर लेते हैं।
15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन 2 सदी तक जकड़ी रहीं बेड़ियों ने भारत माता के शरीर पर जख्म के गहरे निशान छोड़ दिए। वो जख्म था सांप्रदायिकता का, कम्युनल वायलेंस का, जो जिन्ना ने करवाया हिंदू मुस्लिम। आज भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान नाम के नए देश ने जन्म लिया। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनल वायलेंस के आधार पर। हिंदुओं को तलवार के बल पर डराकर मुस्लिम सांप्रदायिकता के विचार को एक देश का स्वरूप देने की कल्पना यूं तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन उस देश का पहली बार किसी ने नाम दिया तो वो थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही तत्कालीन भारत के उत्तरी हिस्से के 4 मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान का नाम दिया था, या पाकिस्तान नाम के नए देश की विचारधारा पेश की थी। अली ने वर्ष 1933 में इस संबंध में एक पैम्पलेट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम या तो जिएंगे या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने 1930 में ही मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग देश बनाने का विचार पेश कर दिया था। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी राजनीतिक दल मुस्लिम लीग के जरिए पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इन विचारों को हवा दी, हिंदू मुस्लिम करवाया और पाकिस्तान बना दिया। जिन्ना ने जिन विचारों से द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी, उनमें एक अल्लामा इकबाल तो इतिहास की बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन चौधरी रहमत अली को सब ने भुला दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान वर्ड किसने दिया है, और ऐसा आज नहीं हुआ, उस टाइम पर भी नहीं किसी ने याद किया। जब पाकिस्तान बनते वक्त भी किसी को चौधरी रहमत अली की याद तक नहीं आई। वो तो इंग्लैंड में गुमनाम सी ज़िंदगी जी रही थी। तो ऐसे लोगों के लिए होना ही क्या चाहिए? यही होना चाहिए, यही न्याय था प्रभु का। सांप्रदायिकता को नए स्तर पर ले गए थे रहमत अली खान। उन्होंने कम्युनल वायलेंस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब स्थित बालाचौर में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने पहली बार 1930 के शुरुआती दशक में दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम देश बनाने का विचार रखा था। जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, रहमत अली की यह सांप्रदायिक सोच तब सामने आई जब भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहे थे। रहमत अली ने प्रचार करना शुरू किया और भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और ऐसा ही रहा तो आगे चलकर भारत में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ज़्यादातर मुस्लिम नेता यही कहते हैं और मज़े लेते हैं। उस टाइम पर तो बीजेपी और आरएसएस तो थी नहीं, फिर भी लोग आज उसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। पैम्पलेट छपवा कर दिया पाकिस्तान का नाम। उन्होंने रहमत अली के ऐसे विचार दिनों दिन पुष्ट होते गए और उन्होंने वर्ष 1933 में नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर शीर्षक में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसका उपनाम पाकिस्तान हुआ करता था। इस पुस्तिका में उन्होंने पाकिस्तान नामक एक नए मुस्लिम राज्य की विचारधारा पेश की थी। उन्होंने पाकिस्तान शब्द को 2 भागों में विभाजित किया। पाक, जिसका मतलब पर्शियन और उर्दू में शुद्ध होता है, और स्थान, जिसका मतलब भूमि होता है, यानी पाकिस्तान मतलब पवित्र भूमि। लेकिन आज देखो तो अपवित्र भूमि है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो टेररिस्ट एक्टिविटी करवाता है और उसके बदले में क्या लेता है? विकासशील देशों से पैसा, कि हम तो टेररिस्ट को मार रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है। और मैं आपको बता दूं, टीटीपी ने तो भारत की प्रशंसा भी की है कि भारत ने तरक्की किया, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पाक की ज़मीन नापाक हो चुकी है। यह नाम मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को जाहिर करने के मकसद से दिया गया था। रहमत अली के उस पैम्पलेट में पाकिस्तान का नक्शा भी दिखाया गया था, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांचल प्रांत अब खैबर पख्तूनख्वा बन गया है, सिंध और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र शामिल थे और ये सब अब अलग हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, जिसने भारत माता के
शरीर पर इतने जख्म दिए हों तो उसके साथ तो ये होना ही था। उन्होंने बंगाल और असम जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जो अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों से भौगोलिक रूप से दूर थे, लेकिन मुस्लिम आबादी बहुमत में थी। पाकिस्तान बना तो कहाँ थे चौधरी रहमत अली जानते हैं इस लेख के आधार पर। हालांकि रहमत अली के विचारों ने पाकिस्तान की वैचारिक नींव रखने में योगदान दिया, लेकिन वो इसके निर्माण के राजनीतिक और व्यवहारिक पहलुओं में सीधे शामिल बिल्कुल नहीं थे। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना किया। भारत की आज़ादी पर लिखी एक मशहूर किताब आधी रात को आज़ादी में कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसने पाकिस्तान का सपना पहली बार देखा 14 अगस्त के उस दिन को अपने सोने कमरे में बिताने के लिए अभिशप्त था, अभिशाप लगा था, भारत माँ का अभिशाप लगा था। अभिशाप तो आप जानते हैं, पाप लगा था। कैम्ब्रिज के हम्बर स्टोन रोड की तीसरी मंजिल पर वह रहमत अली अकेला बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मुझे किसी ने याद ही नहीं किया, जिसके सम्मान में कराची की किसी सड़क पर कोई जुलूस निकलने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के सपने का प्रारंभ भले ही रहमत अली ने किया, लेकिन उस सपने का चोरी किसने कर लिया? उस व्यक्ति ने कर लिया जिस व्यक्ति को कहते हैं जिन्ना। और जब पहली बार ये प्रस्ताव पारित हुआ तो जिन्ना ने कहा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, 2 नेशन थ्योरी हम सिर से निकारते हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद किस बात पर नाराज़ हो गए थे रहमत अली, वो मैं आपको बताता हूँ। रहमत अली पाकिस्तान बन जाने के बाद भी खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा करवाकर ठीक नहीं किया, पाकिस्तान में तो पूरा पंजाब आना चाहिए था। पुस्तक में आगे लिखा है कि रहमत अली अब एक नया मसौदा तैयार कर रहे थे और पंजाब का विभाजन स्वीकार करके जिन्ना ने कितनी बड़ी भूल कर डाली है उसका ब्यौरा भी उन्होंने डाला और उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। इसका गंभीर विश्लेषण उन्होंने पहली बार लिखकर तैयार किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी वक्त उसने पाकिस्तान नामक ऐसे शब्द की रूपरेखा पहली बार तैयार की थी जो मुसलमानों का अपना देश हो। किंतु इस बार रहमत अली के शब्दों पर ध्यान देने वाला कोई माई का लाल दुनिया में नहीं था। पाकिस्तान की आभारी जनता मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार में $10 लाख जितना खर्च करके लाहौर में उनका स्मारक खड़ा करने की क्षमता रखती थी, लेकिन वहीं वो सब जनता या पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस रहमत अली को याद करने वाली बिल्कुल नहीं थी। उसने ऐसे व्यक्ति को भुला दिया जिसने पाकिस्तान की रूपरेखा पहली बार लिखकर तैयार की थी। रहमत अली का निधन 3 फरवरी 1951 को कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हो गया। उनकी विरासत पाकिस्तान के इतिहास में और उनकी स्थापना के कारणों में विचार और चर्चा की जाती है। मृत्यु के बाद रहमत अली को कैम्ब्रिज स्थित न्यू मार्केट के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जय हिंद।